Hello friends, myself CA Rohit Fulwani. We hope you and your family are safe and doing well. So we are back with Ind AS, and in this webinar we'll be discussing about Ind AS 28 investment in associates and joint ventures. I shall request you to post your queries in the comment section below so that we can reply to your queries at the end of the webinar. Do subscribe to our channel for receiving regular updates. So first we'll see the background and introduction of Ind AS 28. Where one company has a controlling investment in another company, a parent subsidiary relationship is formed and accounted for as a group company. Companies may also have substantial investments in other entities without actually having control. Thus, a parent subsidiary relationship does not exist between the two. If the investing company can exert significant influence over the financial and operating policies of the investee company, it will have an active interest in its net assets and results. The nature of the relationship differs from that of a simple investment. That is, it is not a passive interest. Presenting the investment at cost is investors' financial statements would not fairly present the investment interest. The cost method for accounting for associates and joint venture would simply not reflect the economic reality of the investor's interest in an entity. The operations of associate and joint venture are significant part of reporting entities, that is, the investors' management decisions and operational skills. Thus, the clearly need to reflect substance rather than mere form made the development of the equity method highly desirable. To correct this accounting issue and to reflect the true nature of the interest in the accounts of the investing entity of the net assets and results of the investee, the associate investor reflects in its accounts the investment through the use of equity accounting. So we'll move towards PPT, friends, and see what equity accounting is all about. Ind AS 28 investment in associates and joint ventures. तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंड AS 28 का. इंड AS 28 कब एप्लीकेबल होता है? इंड AS 28 के पास आपको तब जाना है जब कोई एंटिटी की इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर में होती है तब. ठीक है. हम इंड AS 110 हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है, लेकिन जब आपके पास एंटिटी के पास सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट होता है तब आपको इंड AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है. ठीक है. और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड AS 27 ये बोलता है कि आपके पास अगर सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना होता है. तो इंड AS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है. ठीक है. तो इंड AS 28 में कब आना है आपके पास? जब एंटिटी की इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर में है तो आपको इंड AS 28 के पास आना है. ठीक है. तो इंड AS 28 के पास आप आ गए तो उसमें इंड AS 28 आपको बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर को आपको कंसोलिडेट करना है और वो मेथड ऑफ कंसोलिडेशन होगा इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन. ठीक है. अब इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे. तो देख लेते हैं कि एसोसिएट की मीनिंग क्या होती है. ये स्टैंडर्ड आपको कब अप्लाई करना है? जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है. जॉइंट वेंचर के बारे में हमने इंड AS 111 में पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर की मीनिंग क्या होती है, जॉइंट ऑपरेशंस की क्या मीनिंग होती है. ठीक है. तो हमने जॉइंट वेंचर के बारे में इंड AS 111 के बारे में पढ़ा, 111 में पढ़ा था. अब उसकी अकाउंटिंग हमको इंड AS 28 में करनी है. तो पहले एसोसिएट की मीनिंग देख लेते क्या है. An associate is an entity over which the investor has significant influence. तो सर जी आप बोलोगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है कि significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but it is not control or joint control of these policies. ठीक है.
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, आपके पास पावर है डिसीजन लेने का, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का पावर है, ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस लेने का पावर है, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपके पास जॉइंट कंट्रोल नहीं है। जॉइंट कंट्रोल हो गया तो आपको भी या तो वो जॉइंट ऑपरेशन हो जाता है या तो वो जॉइंट वेंचर हो जाता है। हमने इंडेक्स 111 में पढ़ा ये बात, ठीक है। लेकिन आपके पास कंट्रोल भी नहीं है, जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है इन दी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल का है तो आपको इंडेक्स 28 में तो आना ही नहीं है, कंट्रोल है तो आप सीधा इंडेक्स 110 में जाओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आप उसको कंसोलिडेट करो, 100% कंसोलिडेट करो ना। इंडेक्स 28 में 100% कंसोलिडेशन की बात ही नहीं होती है। इंडेक्स 28 में यही बोलता है कि आपको इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन करना है अगर आपके पास जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है तो। अब जॉइंट वेंचर की मीनिंग हमने वहां पे देख ली इंडेक्स 111 में, एसोसिएट की मीनिंग हमने 28 में देख ली। इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा यही वीडियो में। अब एक एग्जांपल दे देता हूं आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। आउट ऑफ 5 बोर्ड मेंबर्स इन द इन्वेस्टी एसोसिएट, यू अपॉइंट 1 और 2 बोर्ड मेंबर्स। मतलब जो इन्वेस्टर है वो 1 और 2 बोर्ड मेंबर्स अपॉइंट करता है। अब बोर्ड मेंबर्स के पास तो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पावर तो होती ही है, इसलिए वो उसको माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। लेकिन वो 1 या 2 बोर्ड मेंबर तो कंट्रोल कर नहीं सकता, जॉइंट कंट्रोल भी नहीं होता, तो हाँ डिसीजन ले सकता है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। अब एसोसिएट की अजम्पशंस स्टैंडर्ड क्या लेता है वो पहले मैं आपको बताता हूं। अगर कोई एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टी होल्ड करता है तो इट इज अज्यूम्ड, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन्वेस्टी में है एंटिटी का तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हुए इन्वेस्टी पे, ठीक है। अनलेस इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दिस इज नॉट द केस। यहां पे ये बात समझ लो, ये स्टैंडर्ड में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हाँ 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है तो आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है। ये अजम्पशन स्टैंडर्ड देता है कि 20% ऑफ मोर ऑफ द वोटिंग पावर है तो वो आप उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हो और वो आपकी एसोसिएट है। लेकिन समझो कि कोई पैसिव इन्वेस्टर होता है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। पैसिव इन्वेस्टर होता है who is interested in capital gains or dividends, he is just interested in capital gains or dividends, ठीक है। तो even though he has more than 20% of the voting power तो भी वो एसोसिएट नहीं होगा, तो भी वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 20% ऑफ मोर ऑफ द वोटिंग पावर हो गया तो एसोसिएट है, लेकिन ऐसा प्रिजम्पशन माना जाता है स्टैंडर्ड का। लेकिन आप उसको प्रूव कर लेते हो कि हाँ वो सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर है तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करना है, इंडेक्स 28 अप्लाई नहीं करना है। और अगर लेस देन 20% है लेकिन फिर भी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो आपको इंडेक्स 28 अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल देखना नहीं है, 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है तो करना ही करना है कंसोलिडेट। लेकिन अगर प्रूव कर लेते हो कि हाँ कोई पैसिव इन्वेस्टर है तो आप ये स्टैंडर्ड से बाहर भी आ सकते हो, ठीक है। अब पोटेंशियल वोटिंग राइट्स की मीनिंग क्या होती है सर जी? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब समझो कि शेयर वारंट्स या ऑप्शंस है उसको भी आपको कंसीडर करना है आपको 20% की कैलकुलेशन में, ठीक है। जैसे कि समझो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की भी मैं अगर बात कर लूं तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू दे आर करंटली एक्सरसाइजेबल, ठीक है। तो आपको वो कंसीडर करना है 20% के कैलकुलेशन में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में स्टैंडर्ड कुछ बोलता है कि देयर आर सम फॉलोइंग वेज जिससे थ्रू पता चल सकता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। वो कुछ देख लेते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
और इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ द इन्वेस्टी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसीजन लेते ही है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, वो भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लाइक डिसीजन अबाउट डिविडेंड्स और अदर डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। मटेरियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द इन्वेस्ट एंटिटी एंड इट्स इन्वेस्टी, कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हो गया दोनों के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एग्जांपल हो जाता है। तो फिर इंटरचेंज ऑफ मैनेजर पर्सनल कोई है, समझो कि कोई एंटिटी है इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर एंटिटी है, उसमें कोई मेंबर है, बोर्ड मेंबर या कोई मैनेजरल पर्सनल है, वो इन्वेस्टी में भी उसके डिसीजंस होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर के कंपनी में भी डिसीजंस होते हैं, चलते हैं उसके, तो फिर बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब आपको केस टू केस डिफर करेगा और आपको केस टू केस एनालिसिस करना है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं। फिर लास्ट है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। इक्विटी मेथड, सर जी मैंने तो बोला इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन फॉलो करना है फॉर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टी रहेगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इक्विटी मेथड इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय द इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। इनिशियली तो आपको कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियली तो अकाउंटिंग आपको कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करनी है। तो अब क्या जनरल एंट्री पास करोगे, बैंक से पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट हो गया, तो आपकी ये जनरल एंट्री हो गई। इनिशियली आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, एंड एडजस्टेड thereafter फॉर द पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन द इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ द इन्वेस्टीज नेट एसेट्स ऑफ द इन्वेस्टी। ठीक है, तो इन्वेस्टी का जो नेट एसेट्स है वो एक्विजिशन के बाद तो चेंज होगा ना। क्यों चेंज होगा सर जी, एसोसिएट जॉइंट वेंचर तो अर्न करेगा ना प्रॉफिट उसके बाद, तो ठीक है, अगर प्रॉफिट उसके बाद अर्न करता है या लॉस उसके बाद होता है, तो आपको पोस्ट एक्विजिशन जो चेंज होता है उसमें जो इन्वेस्टर का शेयर है वो आपको लेना है और आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है कंसोलिडेटेड P&L या OCI में। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर है उतना, समझो इन्वेस्टर का शेयर 35% है या 30% है, तो जितना आपका शेयर है उतना आपको उसके नेट एसेट्स में से लेना है और आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करोगे, टू कंसोलिडेटेड P&L या OCI में। तो ये कंसोलिडेटेड P&L या OCI का क्या मीनिंग होता है, समझो कि इन्वेस्टी है वो अपने P&L अकाउंट के आइटम्स को देखना है, उसके P&L के अकाउंट में से जितना आपका गेन रहेगा वो आपके कंसोलिडेटेड P&L में जाएगा, आपका शेयर सिर्फ इन्वेस्टर का शेयर, और इन्वेस्टर का शेयर इन इन्वेस्टीज OCI, इन्वेस्टी के OCI में भी कुछ आइटम अगर होगा तो उसमें भी इन्वेस्टर का शेयर होगा, तो वो इन्वेस्टर का शेयर लेना है और आपको कंसोलिडेटेड OCI में डालना है। तो ठीक है, तो आपकी क्या एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड P&L या OCI, या तो एक्चुअल गेन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये आइटम से अगर इन्वेस्टी के OCI में, तो उसमें से इन्वेस्टर का जो शेयर है वो आपको लेना है और कंसोलिडेटेड OCI में डालना है। ठीक है, इनिशियली आप कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन इन्वेस्टर्स शेयर्स ऑफ इन्वेस्टीज नेट एसेट्स, उसको इन्वेस्टर के शेयर को लोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, कंसोलिडेटेड P&L या OCI। ठीक है, अब इंड एस 110 की हम बात करें तो 100% कंसोलिडेशन बोलता है, और इंड एस 27 की बात करें तो हमको बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। ठीक है, लेकिन ये हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कॉस्ट पे तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो जब फिर ये स्टैंडर्ड हमको क्यों बोलते हैं कि इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन भी करना है, ऐसे क्यों बोलता है स्टैंडर्ड, क्योंकि कैसा है ना कि आप अगर खाली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे और इन्वेस्टमेंट सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे, तो फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में, उसकी आप परफॉर्मेंस कैसे बता पाओगे। तो इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन में कम से कम वी विल नोट द परफॉर्मेंस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, तो वो बेसिस पे ये स्टैंडर्ड बनाया गया है और वो बेसिस पे इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स ड्राफ्ट किए गए हैं। अब इनिशियली आप उसको कॉस्ट पे तो रिकॉग्नाइज करोगे इन्वेस्टमेंट को, तो आपको या तो गुडविल मिलेगा या तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा।
तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। पहले तो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, फर्स्ट टेबल में गुडविल का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझो 1 लाख है। फिर आपको इसमें से 1 लाख में से इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ नेट फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट्स आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स, ये आपको समझो 80,000 है, तो वो लेस करना है, तो आपका रिमेनिंग जो हो गया वो गुडविल हो गया। तो जो इन्वेस्टर का शेयर है इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स वो आपको लेना है, ठीक है, वो आपने ले लिया, तो वो अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे आप कंपेयर करना है आपको, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल हो गया। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो आपका 20,000 गुडविल हो गया। और समझो कि इन्वेस्टर शेयर ऑफ नेट एसेट्स अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, समझो कि सेकेंड एग्जांपल में देखो इन्वेस्टर शेयर ऑफ नेट एसेट्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उस वो केस में अपना कैपिटल रिजर्व हो गया। फर्स्ट केस में ए माइनस बी आपका गुडविल, सेकेंड केस में बी माइनस ए आपका कैपिटल रिजर्व। अगर आपका गुडविल आता है तो गुडविल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको वो अलग से आपको कोई गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करना है। गुडविल के केस में वापस बता रहा हूं मैं आपको कि आपने तो कॉस्ट पे उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे तो 1 लाख पे करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे तो 1 लाख जाएगा उसमें से, ठीक है। तो वो केस में आपको गुडविल अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व के केस में आपको अलग से रिकॉग्नाइज करना है, वो डायरेक्टली इक्विटी में रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। अब इक्विटी मेथड में 2 पॉइंट तो हमने देख लेते हैं। इनिशियली आपको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, सेकेंड है आपको पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन नेट एसेट्स है, उसमें से आपको इन्वेस्टर का शेयर लेना है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करना है और क्रेडिट करोगे कंसोलिडेटेड पीएनएल या ओसीएम में। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टी शुड रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर समझो डिविडेंड मिल जाता है आपको इन्वेस्टी से, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को क्रेडिट करना है और बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। सिंपल रीजन है, नेट एसेट्स बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, नेट एसेट्स इन्वेस्टी का कम होएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन्वेस्टी से जैसे कि डिविडेंड्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब समझो कि कोई केस में एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में लॉस इंकर होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इन्वेस्टर के बुक्स में। इन्वेस्टर की बुक्स में मतलब कंसोलिडेट जब करेंगे ना इक्विटी मेथड से, तो उसको कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे? समझो कि लॉस हो गया, ठीक है, और आपकी कैरिंग वैल्यू, समझो कि फॉर एग्जांपल आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, लॉस हो गया 1,20,000, ठीक है। इन्वेस्टर का शेयर 1,20,000 बोल रहा हूं, टोटल लॉस समझो ज्यादा हो गया, इन्वेस्टर का जो शेयर है इन इन्वेस्टीज लॉस इस 1,20,000, तो आपको 1,20,000 भी रिकॉग्नाइज करना है। तो 1,20,000 को कंपेयर करो 1 लाख कैरिंग अमाउंट से, तो जो डिफरेंस 20 है ना लॉस का, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है ये केस में। अगर लॉस एक्सीड हो जाता है कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, तो वो जो लॉस जितना ज्यादा हुआ ना वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। तो वो आपको लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना है। तो अब आप बोलोगे कि सब्सिक्वेंटली अगर इन्वेस्टर या जॉइंट वेंचर को प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या करेंगे? समझो कि आपने 20,000 जो था वो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस था, तो अगर नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टर का शेयर जो होता है इन इन्वेस्टीज प्रॉफिट 50,000 है, तो आप जो 50,000 को अभी कंपेयर करना है अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस से, ठीक है, 20,000 से कंपेयर करना है, तो 20,000 तो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब जो 50,000 है आप पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो पहले 20,000 एडजस्ट करोगे उससे, और जो रिमेनिंग 30,000 है एक्सीडिंग द अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस, वो 30,000 को वापस आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दोगे जब वो प्रॉफिट करने लगेगा तो, ठीक है। ये हमने देखा लॉसेस की बात है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स कैसे करने का है वो देख लेते हैं।
समझो कि डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस हुए बिटवीन द इन्वेस्टर एंड एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर। ठीक है, हम एसोसिएट्स का एग्जांपल लेते हैं। अब समझो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर कोई सेल ऑफ गुड्स या एसेट्स हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टर टू एसोसिएट्स, ऊपर से नीचे गया, इन्वेस्टर से एसोसिएट के पास कोई इन्वेंट्री गई है, समझो उसने बेचा है कोई इन्वेंट्री, तो इट इज अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। कोई एसोसिएट ने इन्वेस्टर को इन्वेंट्री बेची है, तो वो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन से हुआ। डाउनस्ट्रीम मतलब इन्वेस्टर टू एसोसिएट, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन मतलब एसोसिएट्स टू इन्वेस्टर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस में आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि इन्वेंट्री एज ऑन ईयर एंड जब कंसोलिडेट कर रहे हो तो किसके पास पड़ी है। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस में इन्वेंट्री पड़ी होगी एसोसिएट के पास। ठीक है, तो आपके पास जब कंसोलिडेट कर रहे हो तो इन्वेस्टर के बुक्स में तो इन्वेंट्री है ही नहीं, तो डेबिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स या कंसोलिडेटेड पीएनएल को करोगे, तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को। ठीक है, और कितना करोगे, इन्वेस्टर्स शेयर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। जितना इन्वेस्टर का शेयर है इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, उतना आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, डेबिट आप करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और या तो बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल को। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस में इन्वेंट्री किसके पास है, एसोसिएट्स ने, जॉइंट एसोसिएट्स ने इन्वेस्टर को बेचा, तो इन्वेंट्री किसके पास है, इन्वेस्टर के पास। तो आप किधर से उसको एलिमिनेट करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, इन्वेंट्री से। डेबिट तो आप करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो आप बोल सकते हो कंसोलिडेटेड पीएनएल। क्रेडिट किसको करोगे, इन्वेंट्री को। कितना, इन्वेस्टर शेयर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दोनों केस में इन्वेस्टर शेयर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ही एडजस्ट करना है। फर्स्ट केस में इन्वेंट्री किसके पास है, एसोसिएट के पास, इसमें इसलिए आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करोगे। सेकंड केस में आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेस्टर के पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री से आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, एक आपको एग्जांपल देता हूं। On January 2, 2018, R Limited, that is an investor, acquired 40% of E Limited, that is an investee, voting shares on the open market for rupees 1 lakh. 1 lakh में खरीदा। Unless demonstrated otherwise, it is assumed that R Limited can exercise significant influence over E Limited operating in financial policies. On January 2, 2018, E Limited shareholders equity is comprised as under। E Limited की shareholders equity बताई गई है 50,000 shares issued and outstanding, additional paid up capital share premium है 1,50,000, retained earnings है 50,000, total shareholders equity है 2,50,000। ठीक है, as on January 2, 2018, जब भी R Limited ने E Limited को acquire किया 40%। अब यहां पे तो एसोसिएट है, क्वेश्चन में ही बोला गया है। अब आगे क्या बोलता है, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ ई लिमिटेड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन जनवरी 2, 2018। ठीक है, अज्यूम फर्दर दैट ई लिमिटेड जो कि एसोसिएट है उसका रिपोर्टेड 2018 नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 30,000 एंड पेड कैश डिविडेंड्स ऑफ रुपीस 10,000। प्रॉफिट हो गया 30,000, कैश डिविडेंड्स पे किया 10,000। Its shareholders equity at year end would be as follows: 50,000 shares issued and outstanding, वो तो 50,000 सेम ही है। Additional paid up capital share premium 1,50,000 है, वो भी सेम है। Retained earnings, ठीक है, पहले कितना था retained earnings 50,000 था, देखो retained earnings 50,000 है, देखो retained earnings 50,000 है। अब रिटेन अर्निंग्स कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 करो तो 50 प्लस 30 80 हो गया, डिविडेंड पे किया माइनस 10,000 करो 70,000 हो गया रिटेन अर्निंग्स। टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया 2,70,000। आपको क्या करना है, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ई लिमिटेड फाइंड आउट करना है इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड एज ऑन 31 December 2018। जनरल एंट्री देख लेते हैं पहले क्या है, आर लिमिटेड वुड रिकॉर्ड्स इट्स शेयर ऑफ द इंक्रीज इन ई लिमिटेड्स नेट एसेट्स ड्यूरिंग 2018 एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट इन ई लिमिटेड को डेबिट करोगे, कितना 30,000 प्रॉफिट हुआ, 30,000 का 40% आप लोगे अमाउंट में, 30,000 प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर्स शेयर कितना है,
तो 30,000 आपका प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 30,000 में से आप 40% लोगे, 12,000 को डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, इनकम फ्रॉम एसोसिएट 12,000। इनिशियली तो आप कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करोगे, कैरिंग वैल्यू क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। कैरिंग वैल्यू कॉस्ट पे तो रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद नेट एसेट्स चेंज हुआ एसोसिएट का, तो उसमें से इन्वेस्टर का शेयर कितना है, 30,000 प्रॉफिट था, उसका 40% लो, इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम एसोसिएट 12,000। ठीक है, अब डिविडेंड आया, मैंने क्या बोला था, डिविडेंड आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अगर एसोसिएट से, तो आपको वो लेस करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, इन्वेस्टमेंट में से आप लेस करोगे 4,000, 10,000 का 40% आपका शेयर है, 10,000 आपको उसका टोटल डिविडेंड था, तो टोटल शेयर लिया 10,000 का 40%। तो कैरिंग वैल्यू क्या हो गया, when R Limited's balance sheet is prepared at 31st December 2018, the carrying amount reported in investment account would be, कॉस्ट तो 1 लाख था, 12,000 प्रॉफिट ऐड किया, 3 स्टेप पे आंसर खत्म हो जाता है, 1 लाख प्रॉफिट, 12,000 उसका नेट एसेट्स में चेंज था, माइनस 4,000 जो डिविडेंड था उसको लेस किया। 3 स्टेप्स, फर्स्ट रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट, सेकंड इन्वेस्टर का जो शेयर है इन नेट एसेट्स ऑफ द इन्वेस्टी वो आप लो, उसका अपना शेयर, इन्वेस्टर का शेयर ले लो, 12,000 उसका शेयर हो गया, माइनस 4,000 डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब आपको उसको रीचेक भी कर सकते हो, 2,70,000 आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी था, उसका 40%, वही अमाउंट आएगा आपका 1,08,000। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ई लिमिटेड प्रॉफिट इज रिपोर्टेड एज वन अमाउंट इन आर लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली, दैट इज इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग द इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू किया है, कौन सा सिचुएशन ऐसा अराइज होगा जब आपको इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू करना है। फर्स्ट सिचुएशन देखो, इफ द इन्वेस्टमेंट चेंजेस टू अ सब्सिडरी, समझो कि पहले एसोसिएट या जॉइंट वेंचर था, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया, अब सब्सिडरी हो गया, तो इंडेस 28 बोलता है अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ पे आपको नहीं आना है, अब जाओ इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में, अब देखो उसको इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करना है, गुडविल कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, आप इंडेस 103 के पास जाओ। ठीक है, अगर वो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर उसमें से स्टेक कम हो जाता है, ठीक है, अब वो सब्सिडरी भी नहीं रहा, जॉइंट अरेंजमेंट भी नहीं रहा, एसोसिएट भी नहीं रहा, अब वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रह गया है। अब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैसे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इक्विटी मेथड, ठीक है, विल बिकम द इनिशियल रिकॉग्निशन वैल्यू। इनिशियली उसको किस पे रिकॉग्नाइज करोगे, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द इक्विटी मेथड। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे, दो चीज का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द रिटेन्ड इंटरेस्ट। समझो 25% आपका था इंटरेस्ट, आपने उसको 10% कर दिया, ठीक है, 10% कर दिया, तो फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंटरेस्ट एंड एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, तो दोनों को ऐड करोगे, उसको कंपेयर करोगे कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा। मैंने क्या बोला था कि आपको एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में से इन्वेस्टर का शेयर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम रहेगा तो आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल में डालना है, ओसीआई का आइटम रहेगा तो कंसोलिडेटेड ओसीआई में डालना है, लेकिन आप अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हो इक्विटी मेथड। ठीक है, तो अगर कोई आइटम्स आपने ओसीआई में रखी पड़ी है, आपने इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू कर लिया, तो अभी ओसीआई में कोई आइटम्स पड़ी है, तो वो ओसीआई की आइटम्स को आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड ओसीआई में पड़ी है, तो वो ओसीआई आइटम्स का आप क्या करोगे, वो आइटम्स में आपको देखना पड़ेगा। ओसीआई के भी दो पार्ट्स होते हैं, आइटम्स सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, या तो आइटम्स दैट आर नॉट सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। ठीक है, अगर वो आइटम सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाला आइटम है तो आपको पीएनएल में रिक्लासिफाई करना है, या तो आपको सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाला आइटम नहीं है तो आपको पीएनएल में नहीं लेके जा सकते हो वो। फॉर एग्जांपल, अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑफ द एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इज रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, या तो फिर वो एक्चुअल गेन्स और लॉस होगा तो दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट, समझो कि एसोसिएट जॉइंट वेंचर बन गया, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट बन गया। मैंने आपको क्या बोला, आपको स्टैंडर्ड
कब अप्लाई करना है? जब इन्वेस्टर के पास एसोसिएट या जॉइंट वेंचर होगा तो। अब एसोसिएट जॉइंट वेंचर बन गया, जॉइंट वेंचर एसोसिएट बन गया, तो आप तो दोनों में तो इक्विटी मेथड ही फॉलो करना है, तो आपको वही करना है, इक्विटी मेथड कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑन दी पोर्शन सोल्ड, या तो पोर्शन सोल्ड हो गया रहेगा, या तो आप रिडक्शन इन इंटरेस्ट इन एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर करोगे तो उस पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड्स रिसीव्ड एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ पोर्शन सोल्ड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आइटम्स, पहले भी मैंने बोला था कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई आइटम्स रह जाती है तो वो पीएनएल में क्लासिफाई होगी कि नहीं होगी। आपको वही देखना है कि आइटम रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल वाला आइटम है कि नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाला आइटम है, ठीक है। अगर कोई आइटम रिक्लासिफाइड, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाला आइटम है तो पीएनएल में लेके जाओ, नहीं तो आप पीएनएल में लेके नहीं जा सकते हो। आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक्विजिशन ऑफ एन एसोसिएट स्टेजेस, एक्विजिशन ऑफ एन एसोसिएट इन स्टेजेस का एक एग्जांपल दूंगा। अब देखो एग्जांपल देखो, एके लिमिटेड acquired a 10% interest in BK Limited for ₹1,000 at 1st June 2018. 1st June 2018 को 10% इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, अभी तक वो एसोसिएट नहीं हुआ है, 10% इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया at ₹1,000. The investment in BK Limited was accounted at fair value. अब तो वो एसोसिएट नहीं है तो अब उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। AK Limited recognized an increase in the fair value of ₹600 in other comprehensive income for the year ended 31st December 2018. तो फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज किया थ्रू OCI, 600 रिकॉग्नाइज कर दिया। AK Limited acquired an additional 25% interest in entity BK Limited for ₹4,000 at 1st January 2019 and achieved significant influence. Additional 25% interest acquire किया in entity BK Limited for 4,000 at 1st January 2019 और significant influence हो गया और associate बन गया। The fair value of BK Limited's net assets was 5,000 at June 18. First time acquire किया था 10%, तो 5,000 था उसका net assets का fair value। अब वो इंक्रीज होके 8,000 हो गया एट 1st January 2019. BK Limited recorded profits after dividends of ₹2,000 between 1st June 2018 and 1st January 2019. तो BK Limited recorded profits after dividends of ₹2,000. Net प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड बताया गया आपको। मैंने क्या बोला था, 3 स्टेज में आपको रिकॉर्ड करना है। पहले तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स को आप लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप डिविडेंड लेस करते हो। इसमें तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप डिविडेंड लेस करते हो, इसमें तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ही दे दिया है, तो आपको थर्ड एडजस्टमेंट तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे स्टेज में आपका आंसर आ जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले तो आपको गुडविल देखना है। गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन इज एज फॉलोज। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी पे थी? 1,000। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या था उस दिन पे जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्वायर की थी 10%, तो 5,000 था। क्वेश्चन में देख लो, वापस दिखा रहा हूं, देखो द फेयर वैल्यू ऑफ बीके लिमिटेड नेट एसेट्स वाज 5,000 एट जून 18 और बाद में इंक्रीज हो गया 8,000 जब उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट किया। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर गुडविल कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट का 1,000 है, 5,000 उसका नेट एसेट्स है, तो 10% ऑफ 5,000 आप 500 ले लोगे। तो गुडविल अराइजिंग ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना है? 500। सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना था? कॉस्ट 4,000। 4,000 को कंपेयर करेंगे उसके फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या था? 8,000। उसको अपना शेयर ले लेंगे 25%, तो 4,000 में से 2,000 गया तो 2,000 आपका गुडविल अराइज हो गया ऑन सेकंड इन्वेस्टमेंट। तो गुडविल कितना हुआ? टोटल गुडविल कितना हुआ फर्स्ट और सेकंड मिला के? 2,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 2,500। तो आपका टोटल गुडविल 2,500 हो गया। अब कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड? पहले तो कॉस्ट देखो, कॉस्ट क्या था? 1,000 कॉस्ट वो ऐड हो गया, 1,000 कॉस्ट ऐड हो गया, 4,000 भी कॉस्ट है सेकंड इन्वेस्टमेंट, तो 4,000 भी ऐड हो गया, ठीक है। पहले तो कॉस्ट की रिकॉग्निशन हो गई। सेकंड स्टेप क्या बोला था मैंने आपको? प्रॉफिट्स लेना है। प्रॉफिट्स कितना था? 2,000 प्रॉफिट्स था। देखो
2000, BK Limited recorded profits after dividends of rupees 2000 between 1st June 2018 and 1st January 2019. तो 2000 प्रॉफिट्स था, तो उसमें से कितना शेयर था एंटिटी का, BK लिमिटेड का 10%, तो 200 ऐड कर दो, तो 1000 कॉस्ट ऐड किया, 4000 कॉस्ट ऐड किया, 200 भी ऐड किया, ये आफ्टर डिविडेंड ही ऐड कर दिया, तो इसमें थर्ड स्टेप भी हो गया आपका, ठीक है, 200 भी ऐड किया। लेकिन क्या था कि पहले 10% रिकॉग्नाइज करते टाइम वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हुआ था, और 600 भी जो था उसका फेयर वैल्यू गेन वो OCI के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया था। जो 600 पहले रिकॉग्नाइज किया था तो उसको माइनस करना पड़ेगा अभी, तो प्लस 600 दिख रहा है आपको, 1000 प्लस 600, तो 600 हमने ऐड किया होगा इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट पे, तो जो 600 जो ऐड किया होता है उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है, ये देखो फेयर वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है जब हम इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन करते हैं। तो आपका टोटल अमाउंट में आपका गुडविल भी आ गया 2500। तो आपको मैंने पहले भी बोला था गुडविल अलग से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। Exemptions from applying the equity method. When an investment in associate or joint venture is held by or is held indirectly through an entity that is a venture capital organization or a mutual fund, unit trust and similar entities including investment linked insurance funds, the entity may elect to measure that investment at fair value through profit and loss in accordance with Ind AS 109. यही चीज सेम चीज इन AS 110 में भी सिमिलर चीज दी गई है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को एग्जेम्पशन दिया गया है कंसोलिडेशन के लिए। तो इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन में भी सिमिलर एग्जेम्पशन है। कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटीज रहेगी जैसे कि वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, सिमिलर या तो कोई सिमिलर एंटिटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट लिंक फंड्स, तो वो चीज में एंटिटी इलेक्ट कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट को हम इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन ना करें और उसको मेजर करें फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब्जेक्ट टू वी मेजर इट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 109। आपको ये इलेक्शन सेपरेटली करना है, ठीक है, इलेक्शन फॉर मेजरिंग थ्रू प्रॉफिट एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये इलेक्शन आपको सेपरेटली करना है फॉर ईच एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, ठीक है। आपको Ind AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कोई एग्जेम्पशंस दी गई है, वो एग्जेम्पशंस हम डिटेल में Ind AS 110 के टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब पढ़ेंगे, तो वही एग्जेम्पशंस इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। अदर पॉइंटर्स देख लेते हैं। An entity shall apply Ind AS 105 to an investment or a portion of an investment in an associate or joint venture that meets the criteria to be classified as held for sale. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर एंड इफ यू आर क्लासिफाइंग इट एज हेल्ड फॉर सेल, तो आपको Ind AS 105 के हिसाब से उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको Ind AS 105 अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें उसके क्या प्रिंसिपल्स है वो देखने होंगे और उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होगी। Ind AS 105 का मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। Entities' financial statements shall be prepared using uniform accounting policies for like transactions and events. अगर आप इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन कर रहे हो तो आप ही बताओ, जब जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कंसोलिडेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन, तो इक्विटी तो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज फॉलोड बाय द इन्वेस्टर एंटिटी, ठीक है। तो सबको यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे, आपको एडजस्टमेंट शैल बी मेड to make the associates or joint ventures accounting policies to conform to those of the investor entity, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी और उसको यूनिफॉर्म एक अकाउंटिंग पॉलिसी पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन कर सकते हो। अब इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट करोगे इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को,
तो वो इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, और उसमें गुडविल अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपको फिर ये देखना है कि कि वो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर हुआ है कि नहीं। आपको इंडेक्स 109 के सबसे देखना है, 9 के पास जाना है, इंडेक्स 109 के पास, और देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर हुआ है कि नहीं। और अगर इम्पेयर हुआ है, इंडिकेशंस देखनी है, अगर वो इम्पेयर हुआ है तो इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से आपको इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर मी फॉर इंडेक्स 28। जय हिंद, जय भारत।